In the today's lecture, we will discuss the remaining part of our chapter, that is solid dosage form powder. In this, the remaining part is mixing method of powder. Before we will discuss the our today's lecture. We will shortly discuss the previous lecture in short. That is the introduction of powder. After that, the definition of powder, then the some of advantage of powder, then the disadvantage of powder. After that, the classification includes of powder. In that the 5 types of classification of powder. First is bulk powder for external use, then the bulk powder for internal use, then the powder enclosed in cackets, then the that is a simple and compound powder for internal use, then compressed powder. After that, this is the classification of powder. After that, we will discuss, or we will learn the dispensing, what we can say that the dispensing problem or dispensing of powder involving special problem, dispensing of powder involving special care or problems. And this is after that the next we have to study, that is mixing method of powder, or we can say that blending method of powder, that is of a powder. Then for here, in short, we have to discuss the definition. Powder are mixture of dry finely divided drugs and or chemicals that may be intended for internal or external use. Powder is the mixture of dry or obviously finely divided drugs and chemicals, and this is used for internal and external also. And then next is some of the disadvantage and advantage. Okay, then next is the blending of powders, the main point of today's lecture, that is mixing of powder. We can say that also blending of powders. In the pharmaceutical, first we have to study all of the blenders or mixers. Then after that, the blending of etc. Apparatus is included, that is a V-cone blender, double cone blender. Okay, the mixer, blending of apparatus we have to study it in the pharmaceutical first. Okay, blending of powder, what is this? So let's see what is the blending of powder, or we can say that mixing of powder. When 2 or more powder substances are to be combined to form a uniform mixture, it is best to reduce the particle size of each powder individually before weighing and blending. Depending on the nature of ingredients, the amount of powder and the equipment, powder may be blended by spatulation, trituration, sifting and tumbling, and there is a last is geometric dilution. ओके, जब भी दो से ज़्यादा पाउडर हमको मिक्स करने होते हैं, कंबाइन करने होते हैं इन द यूनिफॉर्म मिक्सचर में, तो हमको उसको पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना होता है. तो उसे बिफोर मिक्सिंग इंडिविजुअली द वेइंग एंड ब्लेंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग द पार्टिकल्स और फॉर यूनिफॉर्म मिक्सचर. ओके, सम ऑफ द methods which are included in a mixing of powder, that is 5 methods for mixing of powder. First is spatulation, second is trituration, then third is geometric dilution, then fourth is sifting, then fifth is tumbling. Okay, so let's see one by one all of these mixing of powder method. Okay, first is spatulation. अब स्पैचुलेशन क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं. एज अ नेम इंडिकेट, स्पैचुलेशन मीन्स हियर इज स्पैचुला इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग पर्पस. ओके, द spatula is the blending small amount of powders by movement of spatula through them on a sheet of paper or an ointment tile. It is not suitable for large quantities of powder or for powders containing potent substances because homogeneous blending is not as certain as the other methods. Okay, स्पैचुला ब्लेंड करने के लिए हमें ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए स्मॉल अमाउंट पे हम पाउडर मिक्स करना होता है, तो स्पैचुला जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसे मिक्स करने के लिए हमें स्पैचुला का यूज़ करना होता है स्मॉल पर्पज़ के लिए. किसके अंदर हमें पाउडर मिक्स करना है?
एक ऑइंटमेंट टाइल होती है और उससे क्या बोलेंगे ऑइंटमेंट स्लैब जो होती है ऐसे स्क्वायर टाइप में होती है टाइल, उसके ऊपर हम पाउडर ड्रग रखेंगे और स्पैचुला की हेल्प से उसे मिक्स करेंगे। और हम शीट ऑफ पेपर भी यूज़ करते हैं, पेपर की जो शीट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए पाउडर। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला वी कैन मिक्स द पाउडर ऑन अ शीट ऑफ पेपर और एन ऑइंटमेंट टाइल। ओके, दिस इज स्पैचुलेशन एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटी में हमें पाउडर मिक्स करने के लिए इस मेथड का यूज़ हम नहीं कर सकते। ओके, स्मॉल क्वांटिटी में हम सिर्फ स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं ऑन अ शीट ऑफ पेपर और ऑइंटमेंट टाइल। ओके, तो जो कि लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है कि कंटेनिंग पोटेंट ड्रग भी होते हैं और बिकॉज होमोजेनियस ब्लेंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। होमोजेनियस मिक्सचर और मिक्सिंग हम नहीं कर सकते, होमोजेनियस मिक्सिंग हम नहीं कर सकते ऑइंटमेंट टाइल के ऊपर और पेपर शीट के ऊपर। तो लार्ज क्वांटिटी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते स्पैचुला के हिसाब से। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग होते हैं उसे मिक्स करने के लिए हम स्पैचुला की यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज द स्पैचुलेशन मेथड। द नेक्स्ट इज ट्राइचुरेशन मेथड। तो as the name indicate, trituration means here mortar or spatula is we can use for mixing purpose। okay, तो यहाँ पर एक एग्जांपल और इमेज भी बताई यहाँ पर इन्होंने कि ट्राइचुरेशन करते टाइम एक मोटर और पेसल ऑब्वियसली हमको यूज़ करना होता है, उसके हिसाब से हम जो क्रिस्टल टाइप के जो ड्रग होते हैं उसे भी हम मिक्स कर सकते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि किस तरह से ट्राइचुरेशन हम यूज़ कर सकते हैं इन द मिक्सिंग पर्पस। ओके, ट्राइचुरेशन में बी एम्प्लॉयड बोथ टू कम्युनिकेट and to mix powders. If simple matte mixture is desired without the special need for combination, the glass mortar is usually preferred। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ट्राइचुरेशन करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर सकते हैं और पाउडर जो होता है मिक्स कर सकते हैं। इफ़ पार्टिकल साइज रिडक्शन इज डिजायर्ड अलॉन्ग विथ मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, ए पोर्सलिन mortar with a rough inner surface is preferred to a ग्लास मोटर विथ स्मूथ वर्किंग सरफेस। तो जो पोर्सलिन का यहाँ पर बताया गया है कि जो पोर्सलिन का वाटर पेसल होता है वो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, पोर्सलिन के जो वाटर पेसल होता है वो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर ट्राइचुरेशन मेथड के अंदर एज कम्पेयर टू द ग्लास मोटर। इसके अंदर ट्राइचुरेशन मेथड में जो हम ट्राइचुरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे हम बोलेंगे तो पोर्सलिन का मोटर पेसल होता है, देन ग्लास का भी मोटर पेसल यूज़ होता है। तो हमें ग्लास का जो मोटर पेसल होता है वो यूज़ नहीं करना है क्रिस्टलाइन करने के लिए और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पोर्सलिन का मोटर पेसल चाहिए होता है। ओके, ट्राइचुरेशन करने के लिए। ओके, डिजायर्ड क्वांटिटी में हम पार्टिकल साइज वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं एज वी कैन यूज़ द व्हाट वी कैन से दैट पोर्सलिन वाटर पेसल फॉर द ट्राइचुरेशन पर्पस। ओके, यहाँ पर एक इमेज भी बताई है, इसमें इमेज का यूज़ करते हुए हमको ट्राइचुरेशन प्रोसेस यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये हो गया ट्राइचुरेशन। फर्स्ट हमने देख लिए थे स्पैचुलेशन। विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला वी कैन मिक्स द पाउडर। ओके, in the trituration with the help of mortar pestle we have to triturate or mix the powder homogeneously or crystalline substances we can particle size reduced by the trituration process। The next is ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन? यहाँ पर एज अ नेम इन्होंने यहाँ पर एक स्लाइड में नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको PDF सेंड किया है, उस PDF से आपने क्या करना है, नोट्स निकालना है और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको स्टडी करना है। ऑल ऑफ दिस मैटर इज इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड बट जस्ट एग्जाम्पल इज नॉट रिक्वायरिंग दिस, सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू रिटर्न द PDF notes, okay, and write down the writing notes from this PDF। okay, तो
तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, एक नेक्स्ट हमारी मेथड है। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होती है वो हमको स्टडी करना है। एज अ नेम फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा, जो नेम क्या बताएगा उसके हिसाब से हमको अंदाज़ा लगाने का है, और हमें स्टडी करना है कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होती है। स्पैचुला मतलब स्पैचुला ऑब्वियसली यूज़ करना होता है। ट्रैचुरेशन मतलब ट्रैचुरेशन के लिए मोटर पेंसिल हमें यूज़ करना है पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए, और होमोजेनियस मिक्सचिंग ऑफ पाउडर के लिए। ओके, देन नेक्स्ट जो थर्ड हमारी मेथड है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो हमें इसमें क्या करना है वो देखते हैं हम। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट सब्सटेंस इज टू बी मिक्सड विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, द ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड इज यूज्ड टू इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंट ड्रग्स। दिस मेथड इज स्पेशली इंडिकेटेड व्हेन द पोटेंट सब्सटेंस and other ingredients are same color and visible sign of mixing is lacking. By this method, the potent drug is placed with an approximately equal amount of or equal volume of diluent in a mortar and mixed thoroughly by trituration. Okay, then a second portion of a diluent equal in volume to the mixture is added and the trituration repeated. This process is continued by adding an equal volume of diluent to the powder mixer and repeating this until all the diluent is incorporated. Some pharmacists add an inert colored powder to the diluent before mixing to permit usual inspection of mixing process. अब ये ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होते हैं ये हम स्टडी करेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो स्मॉल क्वांटिटी में पोटेंट सब्सटेंस होते हैं उसका हम किस तरह से उस पाउडर जो पोटेंट सब्सटेंस होते हैं उसका कैसे मिक्स करेंगे। तो उसके मिक्सिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज अमाउंट में डाइल्यूएंट लेना पड़ेगा जो कि पोटेंट ड्रग होते हैं, उसको हमें मिक्स करना है एज ए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन बोल के। तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंट सब्सटेंस लेंगे और उसके अंदर लार्ज अमाउंट में डाइल्यूएंट हमको मिक्स करना है। तो कैसे मिक्स करेंगे, इन दिस मेथड स्पेशली इंडिकेटेड व्हेन द पोटेंट सब्सटेंसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर सेम कलर एंड विजिबल साइन ऑफ मिक्सिंग इज लैकिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पोटेंट सब्सटेंस हम यूज़ करने वाले हैं मिक्सिंग के लिए, तो अदर जो इंग्रेडिएंट भी होते हैं मिक्सिंग के लिए अगर सेम कलर के होंगे तो उसका विजिबल नहीं होगा। सेम कलर के पोटेंट ड्रग्स और डाइल्यूट होंगे तो उसको कैसे मिक्स करेंगे। ओके, तो इसलिए इसके लिए हमको ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड यूज़ करनी है। बाय दिस मेथड द पोटेंट ड्रग इज प्लेस्ड विथ एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम। क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी पोटेंट ड्रग हम यूज़ करने वाले हैं मिक्सिंग के लिए इक्वल वॉल्यूम में डाइल्यूएंट लेना पड़ेगा और पोटेंट ड्रग हमको लेना है। एंड वी कैन ऐड दिस पोटेंट ड्रग्स एंड डाइल्यूएंट इन द mortar and triturate this mixture until the desired mixing is not occur. Okay, then second portion of diluent, जो सेकंड पोर्शन है डाइल्यूएंट का इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ पोटेंट ड्रग, उसके क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले में लिया था वही इक्वल क्वांटिटी में हमें डाइल्यूएंट ऐड करना है उसी मिक्सचर में जो कि हमने पहले प्रिपेयर किया था मिक्सचर डाइल्यूएंट और पोटेंट ड्रग का। उसी मिक्सचर में हमें क्या करना है, सेकंड जो पोर्शन है डाइल्यूएंट का वो ऐड करना है, देन उसको मिक्स करना है और उसको ट्राइचुरेट करना है रिपीटेडली। ओके, दिस प्रोसेस इज continued by adding an equal volume of diluent to the powder mixture and repeating this until all the diluent is incorporated. तो इस प्रोसेस में क्या करना है, ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना है। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है कि जो इसके अंदर एडिंग करते रहना है हमको। जो भी हमारा डाइल्यूट हमने लिया है पाउडर का जो मिक्सचर है उसके अंदर हमने डाइल्यूट ऐड करना है। तो वो प्रोसेस हमें रिपीटेड करना है जब तक कि हमारा जो डाइल्यूट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और वो मिक्स नहीं हो जाता हमारे पाउडर मिक्सचर के अंदर और वो पोटेंट ड्रग के अंदर। तो इसलिए ये समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि मैंने एक समझो, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिलीग्राम पोटेंट ड्रग्स लिया है, तो उसके अंदर मुझे ऐड करना है 15 मिलीग्राम डाइल्यूएंट उसके अंदर मुझे ऐड करना है। ओके, तो 5 मिलीग्राम जो मैंने पोटेंट ड्रग लिया है वो मैंने मोटर के अंदर ऐड करना है और उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो 15 मिलीग्राम मुझे ऐड करना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैंने डिवाइड की है। ओके, इक्वल वॉल्यूम में मुझे ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम में मुझे दोनों का भी क्वांटिटी सेम रखना है और उसको मिक्स करना है। ओके, जैसे कि मैंने पोटेंट ड्रग 5 मिलीग्राम लिया था उसके हिसाब से मैंने डाइल्यूएंट 5 मिलीग्राम लेना है। ओके, दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद ट्राइचुरेट करना है। उसके बाद क्या करूँगी मैं, उसी मिक्सचर के अंदर जो मेरा डाइल्यूएंट का जो रिमेनिंग
पार्ट है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, उसमें से मैंने 5 मिलीग्राम और लेना है, उसी पाउडर मिक्सचर में उसको ऐड करना है, ट्राइचुरेट करना है, मिक्स करना है। ओके, देन उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट करनी है। उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग डाइल्यूएंट है 5 मिलीग्राम, पहले 5 मैंने डाला, उसके बाद 5 डाला, अब मेरा रिमेनिंग 5 रह गया है, वो मैंने उसके अंदर ऐड करना है। ओके, उसको फिर वो पहले के जो मेरा मिक्सचर है डाइल्यूएंट और पोटेंट ड्रग का, उसके अंदर मुझे वो ऐड करना है। तो ये प्रोसेस मैंने 3 बार करनी है। मैंने 5 मिलीग्राम पोटेंट ड्रग लिया है, उसके अंदर 15 मिलीग्राम डाइल्यूएंट मुझे ऐड करना है। इसी तरह से ये ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड है। ओके, ये एक एग्जांपल मैंने बताया है कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन किसे होता है। तो डाइल्यूशन एज ए नेम इंडिकेट, मुझे डाइल्यूट करते रहना है उस पोटेंट ड्रग को, मिक्सिंग एज ए मिक्सिंग ऑफ पाउडर को, जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन है उसको, डाइल्यूशन मतलब क्या, मुझे डाइल्यूट करते रहना है, डाइल्यूएंट ऐड करते हुए मुझे डाइल्यूट करते रहना है उस पोटेंट ड्रग को। तो ये हो गई ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं बताया इस स्लाइड में, लेकिन मैंने इस चैप्टर के एज ए PDF नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए। उस नोट्स में से, उस PDF में से आपको राइट डाउन करना है ऑल ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल भी आपको इनलिस्ट करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग ऑन दिस मिक्सिंग ऑफ पाउडर और स्पेचुलेशन, ट्राइचुरेशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, देन नेक्स्ट इज शिफ्टिंग, टम्बलिंग। ओके, तो इसके हिसाब से आपको इसके नोट्स राइट डाउन करने हैं, 1 बाय 1 साइड बाय साइड आपको चैप्टर के नोट्स निकालने हैं। ओके, पहले इंस्क्रिप्शन चैप्टर हमने स्टडी कर लिए, देन नेक्स्ट जो हमने स्टडी किए थे इनकम्पैटिबिलिटी स्टडी किए थे, उसके बाद पोस्टोलॉजी स्टडी किए थे, ये एक पार्ट था, ये हमने पूरा स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमने स्टडी कर रहे हैं, और एटलीस्ट ये भी हमारा चैप्टर खत्म होते आ रहा है। तो हम आज के लेक्चर में मिक्सिंग ऑफ पाउडर स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने स्पैचुलेशन एक मेथड हमने स्टडी कर लिए थे, नेक्स्ट हमने ट्राइचुरेशन स्टडी कर लिए थे, देन नेक्स्ट जो था ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक मतलब डाइल्यूशन, जो पोटेंट ड्रग होते हैं उसे डाइल्यूट करना होता है हमें। 5 मिलीग्राम हमने पोटेंट ड्रग लिया है, उसको 15 मिलीग्राम से डाइल्यूट करेंगे। तो 5 मिलीग्राम की क्वांटिटी जितनी है पोटेंट ड्रग की, उतनी ही हमें डाइल्यूट की क्वांटिटी लेनी है, उसे मिक्स करना है, देन 5 मिलीग्राम ऐड करना है, देन मिक्स करना है, देन ट्राइचुरेट करना है, देन 5 मिलीग्राम लेना है, देन उसे मिक्स करना है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होता है वो देख लेते हैं हम। शिफ्टिंग जैसे कि हमने टैबलेट हम फार्मास्यूटिक फर्स्ट में हमने प्रैक्टिकल करते हुए, और टैबलेट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने सीविंग कैसे करते हैं, प्रिपरेशन के जो प्रैक्टिकल करते थे उसमें सीविंग कैसे करते हैं, जो भी हम पाउडर फॉर्म होता है उसे डंप मास प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब क्या, शिफ्टिंग का एक दूसरा मतलब मायने होता है कि शिफ्टिंग। ओके, सीविंग को ही शिफ्टिंग बोलेंगे। ओके, तो हमने कैसा डंप मास प्रिपेयर किया था, देन सीव नंबर 8 और 10 में से उसे कैसे सीव किया था उस पाउडर को, डंप मास को, देन उसको ड्राई किया था हॉट एयर ओवन में, देन उसके बाद हमने उसको सीविंग किया था। तो ये सीविंग की एक प्रोसेस होती है जो कि हमें पाउडर मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम घर में भी देखते हैं हम किस तरह से पाउडर जो हमारा पीठ होता है, तो आटा जो होता है उसको हम कैसे छान के लेते हैं, उसे शिफ्टिंग और सीविंग बोलते हैं। तो इमेज में आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो पाउडर में ऑल्सो बी मिक्सड बाय पासिंग देम थ्रू शिफ्टर लाइक दोज यूज्ड इन किचन और शिफ्टर फ्लोर। जैसे हम आटे को जैसे छानते हैं उसी तरह से हमें पाउडर को शिफ्ट करना है और सीविंग करना है। ओके, शिफ्टिंग रिजल्ट इन अ लाइट और फ्लफी प्रोडक्ट। जबकि हम शिफ्टिंग करते हैं और शिफ्टिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि एक लाइट प्रोडक्ट हमें मिलता है और फ्लफी प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं जैसे आटा छनने के बाद कैसा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है और फ्लफी प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसे बोलेंगे, ये एक मेथड है मिक्सिंग की ऑफ पाउडर की। तो दिस प्रोसेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स इंटू डाइल्यूट पाउडर। जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में देखा था, और पोटेंट ड्रग जैसे हम यूज़ करते थे, तो पोटेंट ड्रग को हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो हाईली कॉन्सनट्रेट होता है और वो उसकी जो क्वांटिटी होती है थोड़ी रहती है, इसलिए पोटेंट ड्रग को हम डाइल्यूट करते टाइम उसको शिफ्टिंग नहीं
करेंगे, जो अदर इंग्रेडिएंट होते हैं पाउडर फॉर्म होते हैं उसका हम शिफ्टिंग करेंगे। ओके, ये एक मिक्सिंग ऑफ पाउडर की मेथड है एज अ शिफ्टिंग। ओके, फर्स्ट हमने देख लिए थे स्पैचुलेशन, देन जो सेकंड थी ट्राइचुरेशन, देन थर्ड थी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, देन फोर्थ थी शिफ्टिंग, और जो लास्ट है हमारी टम्बलिंग मेथड। टम्बलिंग मेथड क्या होती है वो हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, एक लास्ट मेथड है हमारी टम्बलिंग, मिक्सिंग ऑफ पाउडर की। ओके, टम्बलिंग, अनदर मेथड ऑफ मिक्सिंग पाउडर इज अ टम्बलिंग द पाउडर इन अ रोटेटिंग चेम्बर, स्पेशली स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मोटराइज्ड पाउडर blenders mix powder by tumbling them. Mixing by this process is through but time consuming. Such blenders are widely employed in industry as RF mixers that use a motorized blades to blend powders in a large vessels. Okay, ये टम्बलिंग एक प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हमें जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ एपरेटस और इक्विपमेंट हमने स्टडी किया था, जैसे कि वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, ये क्या है, मिक्सिंग के एपरेटस होते हैं। इसमें क्या करने का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने वी कोन ब्लेंडर यूज़ करना है मिक्सिंग के लिए, तो उसमें हम पाउडर ऐड करेंगे, उसको एक मोटर उसको अटैच की होती है मोटर, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो वो मोटर जो होती है रोटेट होती है, उसके साथ ही साथ जो हमारा वी कोन ब्लेंडर होता है वो भी रोटेट होता है, जबकि वो रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जो होगा उसके साथ ही हमारा पाउडर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा इजीली। ओके, उसके अंदर अगर हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस भी करना है तो हम रिड्यूस भी अच्छे से हो जाएगा और मिक्स भी हमारा पाउडर अच्छे से हो जाएगा। ओके, ये होती है टम्बलिंग प्रोसेस, जिसमें कि हम अलग अलग एपरेटस और मशीन यूज़ करते हैं फॉर द मिक्सिंग पर्पज। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू सी दिस इमेजेस, that is V cone blender or double cone blender. In the next slide we have to see the double cone blender or we can say that tumbling mixer or V cone blender or tumbling mixer. Okay, ये एक एग्जांपल हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में देख लिए थे कि किस तरह से हमने पाउडर को मिक्स करना होता है। देन नेक्स्ट भी एक है यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि प्लानेटरी मिक्सर, ये सब मिक्सर से हमें क्या करना है, हमारा जो पाउडर का जो मिक्सचर है उसे यूनिफॉर्म बनाना है, एक फाइनली पाउडर फॉर्म बनाना है और उसको यूनिफॉर्म नेचर में हमें पाउडर को बनाना है। तो इस मशीन का यूज़ करते हुए हमें बाय दिस टम्बलिंग मेथड वी हैव टू मिक्स दिस ऑल दिस पाउडर फॉर्म यूनिफॉर्मली। ओके, फर्स्ट से हम देख लेते हैं, आते हैं, जस्ट आई हैव टू रिवाइज फर्स्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, after that advantage and disadvantage, then next is blending powders. This is the main point in this today's lecture, that is mixing of powder or we can say that blending of powders. Then in this blending of powder there are 5 methods which is included in the mixing of powder, that is first is spatulation, then obviously spatula is used for mixing of powder. Then next is trituration, for the trituration motor and basically we have to use for mixing of powder. Then next is geometric dilution. What is the geometric dilution? And there is example is given in PDF. I have already provided this PDF, this chapter of PDF. You have to see from this example. Okay, geometric dilution. Then next is shifting. What is the shifting? Then next is last tumbling. What is a tumbling? And their example, their images, their machines or apparatus or we can say that equipment using for mixing of powder, that is double cone blender or tumbling, V cone blender or tumbling or planetary mixer. Okay, thank you.